My dear friends, this is Sir Gaudiman again welcomes you all in our Path Maths online classes. Yes, dear friends, probability topic is going on and we have completed the three exercises from this topic in the last video. Today we are going to start the next topic from the probability, which is known as your probability distribution. Probability, this is known as probability distribution. Actually, this is a distribution. This is your probability distribution in which we have to distribute the event how many times it can happen. और बच्चों इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए लेट मी टेक एन एग्जांपल. जैसे एक कॉइन को हम दो बार टॉस करते हैं. अ कॉइन इज टॉस टू टाइम्स. सो व्हाट यू ऑब्टेन? टू हेड विल बी देयर. इट मे आल्सो दैट वन हेड वन टेल इज देयर, टेल हेड इज देयर और टेल टेल इज देयर. Then in your counting form, what you will say? That we obtained two heads, we obtained one head only, we can obtain no head only. अगर number of heads की अगर आप बात करें तो, अगर आप number of tails की बात करें तो there will be no tail, there will be one tail and there will be two tails. So this is your number of tails. So only two cases may be there, या head आएगा या tail आएगा. और कैसे आ सकता है वो? हो सकता है कि दोनों ही कॉइन पर अगर हेड की बात करें तो दोनों ही कॉइन पर हेड हो, सिर्फ एक कॉइन पे हेड हो, पहले पे हेड आ जाए या फिर दूसरे कॉइन पे हेड आ जाए या फिर किसी भी कॉइन पर हेड ना हो. सो दीज आर द काउंटिंग्स व्हिच इज नोन एज योर द रैंडम वेरिएबल. So this is not a random variable, the variable which is your the number of cases obtained after random experiment. So किसी भी event को how many times it can be obtained and the distribution through the probability is known as your probability distribution. So in this exercise we are going to discuss the number of cases in which how can the probability can happen with an event is your discussed in this topic. So let me complete this question in which we are going to find the distribution of the number of heads whenever coin is tossed two times. So the counting is known as random variable and this is denoted by x. This is your 0, 1, 2 where x is your number of heads. This x is denoting the number of heads. तो x जो है वो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ हेड्स को जब एक कॉइन को दो बार थ्रो करते हैं. और ये दे सकते हैं कि जो x की वैल्यू होगी that may be your 0, that may be 1, that may be 2, क्योंकि हो सकता है कि दोनों ही कॉइन पर आपको हेड ना मिले, हो सकता है कि सिर्फ एक कॉइन पर हेड मिले, हो सकता है कि दोनों ही कॉइन पर आपको हेड मिले. सो फॉर दिस x we need to find now the probabilities. So what is the probability when x is equal to 0 is there? This is known as your means जब एक भी कॉइन पर हेड नहीं आए तो एक भी कॉइन पर हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा? टेल आएगा. और वो केसेस कितने हैं? This is only one case is there. So the probability will be your 1/4. Now the second case, whenever x is 1 is there, means only one head is there on the one coin. सिर्फ कॉइन पर एक बार हेड है और दूसरी बार हेड नहीं हो. So this is the case 1 and 2. Two cases are there. So this is 2/4. And third case, whenever p of x is equal to 2 is there. Probability when x is equal to 2 means कि दोनों ही कॉइन पर आपको जब हेड मिलता है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? दिस इज योर ओनली वन केस इज देयर. दिस इज नंबर 1. So 1/4. So this is the distribution and this distribution is your shown through a table and this is your table, this one. This is x, this is probability of x. So x, the value of x is your 0, 1, 2 because random variable may be 0, may be 1, may be 2, and for the 0 the probability is your 1/4. For 1 this is 2/4. For 2 this is again 1/4. And let us check out the sum of all the probabilities for the all random variables. 1/4 plus 2/4 plus 1/4, this should be 1. देखिए अगर आपका सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आता है तो हम कह सकते हैं कि the distribution which we have done is correct. Otherwise this will be or the some mistake is there. So कुछ मिस्टेक हो सकती है अगर आपकी सभी प्रोबेबिलिटीज का सम आपका अगर 1 नहीं मिलता है.
So two things we need to take care about the probability distribution, that the value of x will never be negative. Distribution के जो random आपका जो variables हैं वो कभी negative नहीं होंगे, और probabilities will also never be negative. So let's start the questions based on the topic probability distribution and the random variable from your exercise 13.4. So the first question, this is your given as, we are given the probability distribution of the random variable and state whether these are not valid assignment or not. So the table is given to you already. probability distribution की टेबल आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों गिवन है. इसमें सिर्फ आपको क्या चेक करना है कि वैल्यू ऑफ x या वैल्यू ऑफ p ऑफ x दैट विल नेवर बी नेगेटिव, और साथ में एक चीज़ और चेक करनी है कि p ऑफ x की वैल्यू सभी का सम अगर आप करते हैं तो 1 है या नहीं. अगर 1 नहीं है, कम या ज़्यादा है, इन दैट केस दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट वैलिड. या फिर कोई भी वैल्यू p ऑफ x की या x की अगर नेगेटिव है देन ऑल्सो द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट वैलिड. सो फर्स्ट पार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू 0.12 है और p ऑफ x की मैंने आपको 0.4, 0.4, 0.2. तो कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, और p ऑफ x को अगर आप सबको सम करते हैं 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 दिस इज इक्वल टू 1. सो दिस इज योर वैलिड. द सेकेंड पार्ट इज नॉट वैलिड बिकॉज p ऑफ x की वैल्यू माइनस 0.1 गिवन है. थर्ड केस इज नॉट ऑल्सो नॉट वैलिड क्योंकि आप p ऑफ y का अगर आप सम करें वो भी 1 नहीं है, साथ में x की वैल्यू भी नेगेटिव है. एंड द फोर्थ केस इज ऑल्सो नॉट वैलिड बिकॉज z की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है -1. सो लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 2 नाउ. An urn contains 5 red and 2 black balls. 2 balls are randomly drawn and let x represent the number of black balls. कहता है कि किसी भी अर्न के अंदर बैग थैला है, अर्न है जिसके अंदर 5 रेड 2 ब्लैक बॉल्स हैं. उनमें से 2 हमने बॉल को रैंडमली ड्रॉ करना है, निकालना है, और जो x है, x विच इज योर रैंडम वेरिएबल इज डिनोटिंग द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स. देखिए अगर बैग में बॉल पड़ी हुई है ब्लैक कलर की और रेड बॉल की पड़ी हुई है इसके अंदर, और अगर हम 2 बॉल निकालते हैं तो ये दोनों बॉल हो सकता है कि दोनों की दोनों ब्लैक बॉल नहीं हो, एक भी ब्लैक बॉल ना हो सकते हैं उनमें से एक ब्लैक बॉल हो सकता है कि दोनों ही ब्लैक बॉल हो. सो दिस विल बी और द वैल्यू ऑफ x. दिस में बी 0, दिस में बी 1 एंड दिस में बी 2, क्योंकि x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स के लिए. दे में बी और देयर में बी नो ब्लैक बॉल, देयर में बी 1 ब्लैक बॉल, और देयर में बोथ द बॉल्स आर ब्लैक. So what are the possible values of x? I have already told you a value of x is your 0, 1 or 2. Is a random variable? बिल्कुल a random variable because we can calculate that both pole may be or black, one may be a black ball and no one will be black. So this is a random variable. Now let's see the question number 3. Let x represent the difference between the number of heads and number of tails obtained when a coin is tossed 6 times. देखिए इसमें x जो है वो डिनोट कर रहा है कि नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स जो भी आएंगे उनका डिफरेंस, और कब आएंगे जब एक कॉइन को हम 6 टाइम्स थ्रो करते हैं. सो लेट मी डू दिस क्वेश्चन बिकॉज वी नीड टू जस्ट राइट आउट द वैल्यू ऑफ x ओनली इन दिस केस. डिस्ट्रीब्यूशन नहीं निकालना है प्रोबेबिलिटी का, हमें सिर्फ x की वैल्यू लिखनी है. कहता है कि अगर एक कॉइन को 6 टाइम थ्रो करते हैं तो उसमें जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स का डिफरेंस. सो देखिए नंबर ऑफ हेड्स के क्या चांसेस हैं जब एक कॉइन को हम थ्रो करते हैं 6 टाइम्स. 6 टाइम्स आपका हेड हो सकता है, 6 के 6 टाइम आपको हेड मिल सकता है, 5 टाइम हेड मिल सकता है, 4 टाइम हेड हो सकता है, 3 टाइम हेड हो सकता है, 2 टाइम हो सकता है, 1 टाइम हो सकता है, और ये हो सकता है कि आपको एक बार भी हेड ना मिले. एंड व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉस. अगर 6 टाइम थ्रो करते हैं कॉइन को और उसमें हेड आपको 6 टाइम आता है तो वहाँ आपको 0 टाइम टेल मिलेगा, क्योंकि सभी कॉइन पर अगर हेड शो करते हैं तो टेल इसका मतलब नहीं है. और अगर 5 टाइम अगर हेड आता है तो मीन्स 1 टाइम टेल विल बी देयर, 5 टाइम हेड आता है तो 2 टाइम विल बी देयर, दिस विल बी 3 टाइम, दिस विल बी 4 टाइम, दिस विल बी योर 5 टाइम एंड दिस विल बी योर 6 टाइम. सो जो आपका नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स का नाम डिफरेंस है, that is denoting the value of x. So this will be your here. This is 6 minus 0 6. 5 minus 1 is your 4. 4 minus 2 is 2. 3 3 0, and both will be your
2 4 6 दे विल बी सेम, क्योंकि यहाँ डिफरेंस का मतलब बच्चों, डिफरेंस का मतलब ये नहीं कि हमें अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को माइनस करना है। माइनस मीन्स वी नीड टू चेक द गैप। गैप मीन्स इफ अगर 6 टाइम अगर हेड आता है तो वहां पर एक बार भी टेल नहीं है, मीन्स 6 से 6 टाइम्स हमें डिफरेंस आ रहा है, यानी कि सब के सब जगह हमें हेड मिल रहा है। सो गैप वी नीड टू चेक। 5 और 1 का गैप देखेंगे, 4 टाइम्स का गैप हो गया, 4 और 2 में 2 का गैप हो गया, 3 और 3 का गैप 0 है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x and we need to just write down the value of x only in this case. Now let's do the question number 4. Find the probability distribution of number of heads in two tosses of a coin. मैं आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जांपल फॉर्म में करा चुका हूँ, एंड यू शुड हैव टू डू बाय योरसेल्फ द रेस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स आल्सो। आपके बाकी दोनों पार्ट भी कर लेते हैं। नाउ आई विल डू द क्वेश्चन नंबर 5 ओनली। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। Find the probability distribution of the number of successes in two tosses of a die, where a success is defined as number greater than 4. देखिए बच्चों क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है किसकी, एक नंबर की जिसमें सक्सेस को मानते हैं हम लोग कि नंबर ग्रेटर देन 4 हो। जब एक डाई को 2 बार थ्रो करें, एक डाई को 2 बार थ्रो करने के बाद अगर हमें नंबर ग्रेटर देन 4 मिलता है तो वो हमारे लिए सक्सेस है। तो नंबर ऑफ सक्सेसेस की डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है। मीन्स देखिए ग्रेटर देन नंबर 4 का मतलब है जब डाई को 2 बार थ्रो करेंगे तो हो सकता है कि एक भी डाई पर 4 से ग्रेटर नंबर ना हो सकता है कि 1 डाई पे ग्रेटर देन 4 नंबर मिले और दूसरी डाई पे ना हो सकता है कि दोनों डाई पे ग्रेटर देन 4 नंबर हमें मिल जाए। तो सबसे पहले वी हैव टू जस्ट राइट डाउन द रैंडम वेरिएबल एंड द सैंपल स्पेस। The question is your, we have to just throw the die 2 times. Die thrown 2 times. Die को 2 बार throw करते हैं. So dear students, the sample space will be R. You know very well. This will be 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, and 1 6. This is 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, and 2 6. Next is 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, and 3 6. Then 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6. Okay. Now next one, last one is 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, and 6 6. So these are the cases whenever die is thrown 2 times. Now we have to find the number of successes in which success is defined as your number greater than 4. So need to write down random variable. Random variable will be on. Random variable क्या बनेंगे देखिए बच्चों, this is denoted by x and this may be और 0 1 and 2. हो सकता है दोनों में से किसी भी डाई पे नंबर 4 से ग्रेटर ना मिले, हो सकता है कि एक डाई पे 4 से ग्रेटर हो और दूसरी डाई पे नहीं हो सकता है दोनों ही डाई पर 4 से ग्रेटर नंबर हमें मिल जाए। So we need to find the probability of x is equal to 0, x is equal to 1 and x is equal to 2. And this is given by probability when x is equal to 0 means जब एक भी डाई पर 4 से ज़्यादा नंबर नहीं होगा। So it means this may be of 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4. So these are the cases in which no die is showing number more than 4 मतलब 4 से ज़्यादा नहीं है। बाकी सब में दे सकते हैं, इसमें एक नंबर 4 से ज़्यादा है, इसमें भी इसमें भी और इन सभी में। सो दिस इज 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, दिस इज 16 के ज़्यादा है। सो 16/36 with the probability when x is equal to 0 is there. What about probability when x is equal to 1 is there? Means सिर्फ एक डाई पे 4 से ग्रेटर हो और दूसरी डाई पे 4 से ग्रेटर नहीं हो। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15 and 16 again. So this is your case where 16 is there, 16 upon 36. And the last one, when probability of x equal to 2 is there, it means जब आपको दोनों ही डाई पर 4 से ग्रेटर नंबर हो. And this is your 5, 5, 5, 6, 6, 5 and 6, 6. So 4 cases are there. So 4 by 36. Now the distribution is to be denoted through a table like this. This is x, this is p of x. This is your 0, 1, 2, and this is 16 by 36, 16 by 36, and this is your 4 by 36. And you can see, अगर हम सबका सम करते हैं तो 16 plus 16 32, 32 plus 4 is 36, 36 upon 36 is 1. So this distribution is absolutely correct. For the next case, second part, we need to find the number of successes in which 6 appears on at least one die. So बच्चों यहाँ आप जो वैल्यू लेंगे at least one die का मतलब है जो वैल्यू ऑफ x होगी that will be your 0 or 1. 1 is your at least 1. Here 1 is having 1 and 2 both. ये जो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है this is your representing 1 and 2 both. यानी कि जब एक डाई पर 6 होगा और दोनों डाई पर 6 होगा तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 के लिए और 0 रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज द केस व्हेनेवर किसी भी डाई पर 6 से ग्रेटर नंबर नहीं हो. तो यू कैन हैव टू टेक द केसेस x इक्वल टू 0 और 1. 0 का मतलब है जब किसी भी डाई पर 6 से ग्रेटर किसी भी डाई पर 6 अपीयर्स ना हो लाइक 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 3 1 ये सारे केसेस फिर 4 वाले सारे केसेस टिल 5 और 5 वाले सारे केसेस इस पे किसी भी डाई पर आपका नंबर ग्रेटर देन नंबर 6 नहीं है. और 1 का मतलब है जिसमें एक और एक से ज़्यादा डाई पर अगर आपको 6 मिलता है तो दैट इज बी टेकन एज योर 1 एज केस. So this was the question number 5 and rest of the question you can do by yourself. Question number 8 is also there in which we need to find the value of k और k की वैल्यू निकालने के लिए देखिए जितने भी प्रोबेबिलिटीज हैं उनका सबका सम 1 करना होता है. तो बच्चों अब जितने भी आपकी p of x की वैल्यू हैं 0 k 2k 2k 3k k स्क्वायर 2k स्क्वायर 7k स्क्वायर प्लस k सबको ऐड करके इक्वल टू 1 रखेंगे एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ k. सो टिल क्वेश्चन नंबर 9 यू कैन डू द क्वेश्चंस. और उसके बाद जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर जितने भी आगे क्वेश्चंस हैं दे आर नॉट इन सिलेबस बिकॉज दे आर रिलेटेड टू द मीन वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन और जो कि हम लोगों को नहीं करने हैं. हमें यहाँ सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं और ये सारे क्वेश्चन दे आर योर टिल 9. सो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी देखिए p ऑफ x प्रोबेबिलिटी गिवन है पहले आप सभी का सम करके इक्वल टू 1 रखेंगे and then you can get your value of k. So this was all about the exercise 13.4 and we will do the next exercise in the next video. Thank you.